Hello everyone, welcome to the channel Study Acumen. Today we will discuss on the topic of Central Bank. Central Bank क्या होता है? Central Bank is an apex bank. It controls the entire banking system of the country. In different countries, its name is different. Like in India, its name is Reserve Bank of India. In UK, its name is Bank of England. In USA, its name is Federal Reserve System. देखिए इंडिया यूके में देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक, बट यूएसए इन फेडरल रिजर्व सिस्टम के अंडर देयर आर 12 सेंट्रल बैंक्स एंड दीज आर रन बाय द फेडरल रिजर्व बोर्ड. और जो फर्स्ट सेंट्रल बैंक है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1668 इन स्वीडन, but effectively came into force in 1694 in UK Bank of England. सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू इशूइंग नोट्स एंड कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट. In India, Central Bank name is Reserve Bank of India. Reserve Bank of India came into force in 1st April 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934. Initially, its office was in Calcutta, but 1937 it has been moved from Calcutta to Mumbai. And after nationalization of 1949, it was a privately owned bank, but after the 1949 it became fully government owned bank. So this is the history of Reserve Bank of India. Next topic is structure of RBI. RBI consists of the following structure. It includes one governor, 4 deputy governors, 4 directors nominated by the central bank, 1 from each 4 local boards. ये local boards eastern, western, northern, southern. 10 directors from various fields nominated by the central bank. 2 government officials nominated by the central bank. So RBI consists of total 21 officials. So this is the structure of RBI. Next topic is functions of central bank. Central bank performs various functions. First one is issuing notes. Second one is bankers to the government. Third one is bankers bank. Fourth one is lender of the last resort. Fifth one is clearing house functions. Sixth one is custodian of foreign exchange. 7th one is collection of statistics. 8th one is credit control. In India, these functions has been performed by the RBI. Now we are studying one by one of these functions. First function is issuing notes. In India, RBI has the full authority to issuing the notes. Except 1 rupee note, and coins.
These are issued by the Government of India. आपने कभी 1 रुपये का नोट देखा है? उसके ऊपर सिग्नेचर किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. बाकी जितने भी नोट्स होते हैं 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, all these notes are issued by the RBI. इसके ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं? RBI के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं. ये ऐसा क्यों है कि 1 रुपी नोट इज ओनली इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर नोट्स आर इशूड बाय द RBI? क्योंकि बिफोर 1935 दिस हैज बीन इशूड बाय द कमर्शियल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट. क्योंकि RBI तो नहीं था, तो क्या था? देयर वॉज नॉट ए होमोजिनिटी इन 1 रुपी नोट. जो बनाए गए थे नोट्स वो ठीक नहीं थे. देयर वॉज ए over quantity of notes, so they have decided that there should be separate department and this has been given to the RBI. लेकिन 1 रुपी नोट जो है वो अभी भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इश्यू हो चुका था. उसके बाद जो है दे हैव गिवन द चार्ज टू RBI. आपने कंफ्यूज नहीं होना है. 1 रुपी का नोट यदि आपसे पूछा जाए कि कौन इश्यू करता है, 1 रुपी नोट हैज बीन इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आपने देखा होगा उसके ऊपर लिखा होता है भारत सरकार का मंत्रालय. ठीक है, बाकियों में क्या लिखा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो दिस हैज बीन इश्यूड बाय ऑल द अदर नोट्स हैज बीन इश्यूड बाय द RBI एक्सेप्ट 1 रुपी नोट. और ये RBI इश्यू कैसे करता है नोट्स को? इसके लिए मिनिमम RBI को 200 करोड़ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है फॉर इशूइंग पेपर करेंसी. और ये किस किस फॉर्म में रखी जाती है? 115 करोड़ जो है हैज बीन केप्ट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और 85 करोड़ फॉरेन सिक्योरिटीज. So this is the function of issuing notes. It has been done by the central bank. Second function is bankers to the government. Central bank also perform the functions as a banker, as a agent, as a advisor to the government. As a banker क्या काम करते हैं सेंट्रल बैंक? It manage the account of the government. As an agent, buy and sell of security. जब कभी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और रेवेन्यू कम होता है, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू द गवर्नमेंट. एज एन एडवाइजर इट फ्रेम द पॉलिसी टू रेगुलेट मनी मार्केट. मनी मार्केट क्या होते हैं? मनी मार्केट इज दैट मार्केट विच प्रोवाइड द लोन फॉर लेस देन 1 ईयर. अब मनी मार्केट में क्या क्या चीजें आती हैं? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, etc. So it also acts as a banker, agent and advisor of the government. Next point is bankers bank. सेंट्रल बैंक को हम एपेक्स बैंक भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है. तो सेंट्रल बैंक का जो डायरेक्ट लिंक होता है किसके साथ होता है? कमर्शियल बैंक के साथ होता है. पब्लिक के साथ इसका कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता. ये एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स and granting the loans. To commercial bank. पब्लिक के साथ नहीं, कमर्शियल बैंक के साथ. देखिए जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट.
और जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को अपनी डिपॉजिट्स एज ए लोन देती है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इस तरीके से जो है सेंट्रल बैंक की डायरेक्ट लिंक किससे होती है, लिंक किससे होता है, कमर्शियल बैंक के साथ। और सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक के बिहाफ पे सुपरवाइजरी फंक्शन भी करता है, जैसे टाइम टू टाइम SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम ज्यादा करता है, CRR कैश रिजर्व रेशियो को कम ज्यादा करता है, तो ताकि जो है वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को कमर्शियल बैंक अचीव कर सके। सो जो है इट ब्रिंग्स द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, सो दैट वी कॉल्ड इट बैंकर्स बैंक। Next point is lender of the last resort. Central bank also act as a lender of the last resort. यदि कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा तो एट लास्ट कमर्शियल बैंक कैन गेट द लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। कई बार क्या होता है, कमर्शियल बैंक की लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है और उसकी सिचुएशन बिल्कुल क्राइसिस में चली जाती है, तो दैट सिचुएशन पीपल्स कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कमर्शियल बैंक्स के लिए, तो इट इज वेरी नेसेसरी टू टेक द लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक लोन कैसे प्रोवाइड करता है, या तो वो कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगा ताकि कमर्शियल बैंक के पास कैश बना रहे, या फिर अगेंस्ट जो सिक्योरिटी रखी होती है अगेंस्ट सिक्योरिटीज लोन प्रोवाइड कर सकता है, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल कर सकता है, so in this way the central bank act as a lender of the last resort. Next point is custodian of foreign exchange. Central bank also act as a custodian of foreign exchange. इसके लिए he will manage the exchange rate through managed floating. मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, बाय एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल मार्केट सो दैट एक्सचेंज रेट विल बी स्टेबल। सो इन दिस वे द सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। सेंट्रल बैंक ऑल्सो परफॉर्म द क्लियरिंग हाउस फंक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जैसे एज यू नो एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप सम कैश in reserve to central bank. और जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके सभी के अकाउंट्स किसमें होते हैं, सेंट्रल बैंक में होते हैं। तो हम इसमें एक एग्जांपल से समझा सकते हैं, जैसे बैंक ए के पास चेक आता है 20,000 का, जो कि बैंक बी के ऊपर लिखा होता है ड्रॉन ऑन बैंक बी, और बैंक ए ऑन बिहाफ ऑफ बी जो है 20,000 की पेमेंट कर देता है। ऐसे ही बैंक बी के पास चेक आता है 25,000 का ड्रॉन ऑन बैंक ए। अब बैंक बी ने कितनी पेमेंट की, 25,000 की ऑन बिहाफ ऑफ ए। तो ऐसे इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक 5,000 रुपए डेबिट कर देगा बैंक ए से, क्योंकि बैंक ए के बिहाफ पे बैंक बी ने कितनी पेमेंट की हुई है, 25,000 की, जबकि बैंक ए ने कितनी की हुई है, 20,000 की। तो इसके पास इसकी पेमेंट कितनी हुई है, 25,000 की, और इसकी पेमेंट 20,000 की। तो डेबिट कर देगा 5,000 पे और क्रेडिट कर देगा 5,000 टू बैंक बी अकाउंट। सो इन दिस वे जो है सेंट्रल बैंक ऑल्सो परफॉर्म द क्लियरिंग हाउस फंक्शंस for a commercial banks. Next point is control of credit. Central bank credit को भी control करता है to increase or decrease the money supply in the market. जैसे मैंने आपको monetary policy में भी बताया था कि there is a situation of inflation or deflation
इन द मार्केट। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब होती है? व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो हम इस केस में क्या करेंगे? मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कम कर देता है। ताकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो, आगे कमर्शियल बैंक पब्लिक को पैसा कम दे। और डिफ्लेशन के केस में सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड होता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। इस सिचुएशन में हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए रेपो रेट को कम कर देती है, बैंक रेट को कम कर देती है, ताकि हम डिफ्लेशन की सिचुएशन को मीट किया जा सके। तो इन दिस वे जो है सेंट्रल बैंक कंट्रोल द क्रेडिट कंट्रोल इन द मार्केट। ये सारे के सारे जितने भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑलरेडी मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी में बताए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Central Bank also collect the statistics regarding banking, insurance, currency, foreign exchange, etc. so that the policy can be formulated for a next period and planning can be made accordingly. So all these are the functions of the central bank. Now, if the question will come in the exam of the functions of central bank, so you have to write all the functions of central bank. Next topic is difference between central bank and commercial banks. तो central bank क्या होता है? Central bank is a apex bank. Apex bank किसको कहते हैं? बैंकों का बैंक, बैंक्स बैंक। और कमर्शियल बैंक इट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक का डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है? कमर्शियल बैंक के साथ। सो इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन टू कमर्शियल बैंक्स। और कमर्शियल बैंक का डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है? पब्लिक के साथ। तो इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन टू पब्लिक। और सेंट्रल बैंक क्या करता है? रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी, कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करता है through different instruments like bank rate, cash reserve ratio, CSLR, statutory liquidity ratio, repo rate। और ये कमर्शियल बैंक क्या करता है? It do the credit creation। आपको बताया था क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है बैंक। सेंट्रल बैंक का मेन वर्क क्या होता है? नोट इशूइंग अथॉरिटी। 1 रुपये के नोट को और कॉइन को छोड़ के जितने भी नोट्स हैं ऑल हैज बीन इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। और कमर्शियल बैंक को कोई भी करेंसी इश्यू करने का राइट नहीं होता। और सेंट्रल बैंक का मेन पर्पस क्या होता है? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। और कमर्शियल बैंक्स का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ज्यादा से ज्यादा लोन देना, ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स को लेना। और सेंट्रल बैंक क्या है? हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही है, उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कमर्शियल बैंक कितने तरह का होता है? पब्लिक बैंक भी हो सकता है, वो प्राइवेट बैंक भी हो सकता है, रीजनल रूरल बैंक्स भी हो सकते हैं, फॉरेन बैंक्स भी हो सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। नाउ दिस टॉपिक इज फिनिश। फॉर मोर वीडियोस प्लीज like, share and subscribe my channel.